or why it is a bad sign. But before I explain, let me give chance to someone from the audience to explain as to why do you think it's a bad sign. So anyone who thinks it's a bad sign, please stand up and explain to everyone as to why it is a bad sign. Please. 1.5 ratio. Sorry. Yeah? 1.5 ratio. No ratio. Okay, 1.5 ratio. दो से ये bad है कि good है? Bad. क्यों bad है? Minus. तो क्या हो गया? 2 से minus है. तो कम हो गया इसलिए bad हो गया. तो यानी कि जो भी चीज कम होती है वो bad होती है. तो महंगाई कम हो गई इसका मतलब bad हो गया. Okay, very good. कम है इसलिए very good. What else? Who else? Yes. उसका एसेट जो है वो कम हो गया। उसका एसेट कम हो गया. एंड जो पहले 200 था अब 150 रह गया. एंड दैट इज लायबिलिटी सेम रहेगी। लाइबिलिटी सेम है. ओके. इसलिए वो बैड। इसलिए बैड है. ओके, वेरी गुड. सो सर का कहना है कि एसेट्स कम हो गए और लाइबिलिटीज उतना ही कितना है एंड दैट इज व्हाई इट इज अ बैड साइन. तो मैं इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करने का मेरा मन है लेकिन टाइम थोड़ा कम है इसलिए कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा. ओके, एनी वन मोर पर्सन, व्हाई इट इज अ बैड साइन? एनीवन व्हाई इट्स अ बैड साइन? I'm not sure I understand. Somebody from the back end. Sir, why it is bad? You said bad sign? Yeah. Okay, sir, please. Because current assets have come down from 400 to 150. Okay. Assets are which are supposed to be sold in the market. Right. If the value is more, then आप कंफ्यूज हो रहे हैं मेरे ख्याल से, पक्का ना? हाँ, see that वही मेरा मकसद है एक्चुअली. वही मैं चाहता हूँ कि आप सोचते सोचते कंफ्यूज हो, क्योंकि आप एक बार कंफ्यूज होना शुरू हो गए तो मुझे पक्का मालूम है कि आप सही जगह पर पहुंच जाओगे. Those of you who think that it is a good sign, please anyone. Yes. So here, because my cash flow is got locked in inventory and receivables, Uh-huh. it has got down. Right. It has increased my free cash flow. Right. So it's a good sign that current ratio is. Very good. Mandan ji also want to add Yes, something? absolutely. Right. So please remember all of you, as a business, see this is the beauty of finance. थोड़ा सा आप उतरना शुरू करेंगे, I am telling you, आपको इतना मजा आना शुरू हो जाएगा कि मुझे डर है कि आप बिजनेस को भूल के फाइनेंस में घुसना शुरू नहीं हो जाए पूरी तरह से. See this is the beauty of finance. एक बार आप नंबर को देखना शुरू करें तो आपको डिसीजन लेना बड़ा आसान होता है. Please tell me, as a business, would you like your inventories to go up or your inventories to go down? Everyone. Let's go down. Is there anyone here who would like his inventories to go up? Please take your hand. आप में से कोई है जो चाहेगा कि उसकी इन्वेंट्री ऊपर जाए? Nobody. As a business, would you like your receivables to go up or go down? Is there anyone in this audience who would like कि मेरे receivables बढ़ते जाएं? है कोई ऐसा? नहीं है. तो remember क्या हुआ यहाँ पर? The current assets, and I will explain to you what is current asset. So अगर मेरी current assets पिछले साल में 200 थी और अब घट के 100 रह गई, इसका मतलब क्या हुआ? मेरी इन्वेंट्री कम हो गया. मेरे रिसीवेबल्स कम हो गए. मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस, मेरा लोन्स एंड एडवांसेस. Good sign or bad sign? Good sign. So please remember, if your current assets are going down and there is no crunch of cash with you, that means remember, a profit-making company, and that is what all of should you aim. That is what all of should you aim. As a profit-making company, you can have a choice. Or you can reduce your current assets by choice, by design, by plan. As a loss-making company, you have no choice. Your current ratio will always be low, negative. क्यों? आपका अगर आप एक loss-making company है तो आप पैसा नहीं है आपके पास में इन्वेंट्री खरीदने के लिए, तो इन्वेंट्री कहां से बढ़ेगी? ठीक है. और आपकी करंट लायबिलिटीज बढ़ते जाएंगी क्योंकि आप उनको देने के लिए पैसा नहीं है. So as a business, and remember this is what all of us need to do. As a business, it's not that you and I have to do by ourselves. We only need to be aware. We only need to be aware so that when our accounts and finance people, when they come to us, or the marketing people, when they come to us, or the production people, when they come to us, we should be able to tell them very clearly that current ratio अपनी कंपनी का इतना है, ये अगले 3 महीने में ये current ratio घट के
इतना होना चाहिए. See, this is how you do the control. You don't do the control of the people by looking at finding out ये कहाँ गया, वो नहीं. आप उसको बोलिए कि ये आपका KRA है, ये आपका की रिजल्ट एरिया है, कि ये 3 महीने के अंदर हमारी जो इन्वेंट्री है, हमारे जो रिसीवेबल्स है, वो घट के इतने कम होने चाहिए, right? And this is how you control your business, and this is how you should run your business. Let us come to the third question and the last question. How do you do the budgeting? तो आप बजटिंग कैसे करते हैं? आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग बजटिंग करते होंगे. सो वुड यू लाइक टू शेयर कि आप अपनी कंपनी में बजटिंग कैसे करते हैं? एंड अगेन इन केस समबडी वुड लाइक टू टेक अ पिक्चर फॉर एवरीबॉडीज बेनिफिट, प्लीज डू दैट. सो हाउ डू यू डू दी बजटिंग इन योर बिजनेस? पहली बात, क्या बजटिंग करनी चाहिए? एवरीबॉडी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोग इनको लगता है कि बजटिंग करना चाहिए? प्लीज टेक योर हैंड्स अप. एवरीबॉडी प्लीज टेक योर हैंड्स डाउन. कितने लोग हैं जो रियल में अपने बिजनेस में बजटिंग करते हैं? प्लीज टेक योर हैंड्स अप. एंड वेरी फ्यू. प्लीज रिमेंबर, बजट इज अ रोड मैप ऑफ योर्स फॉर द एंटायर ईयर. और ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि बड़ी कंपनियों को ही बजटिंग करनी चाहिए, छोटी कंपनियों को बजटिंग करने की जरूरत नहीं है. Every company, without any exception, whether a public limited company, private limited company, partnership company, LLP company, proprietary business, everybody has to do the budgeting. So जिन्होंने भी हाथ ऊपर किए, क्या बजटिंग करते हैं आपके बिजनेस में? Please tell me how do you do it? Anyone, please share as to how do we do it? कैसे करते हैं बजटिंग? And I'm going to show you a very simple method of doing budgeting. एंड रिमेंबर, बजट से क्या होता है? देखिए, आपने साल का बजट बनाया. बजट हेल्प्स यू टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एग्जीक्यूटिव वर्किंग इन योर कंपनी. तो आपने एक बार बजट बना दिया, तो वो बजट से आपको सेल्स का ही नहीं, प्रोडक्शन का ही नहीं, फाइनेंस का ही नहीं, HR का नहीं, सारे डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने को आती है. And let me share with you a very simple technique of doing budgeting. How to do the budgeting? अब देखिए, आपके बिजनेस में आपने कैपिटल लगाया है कि नहीं लगाया है? कितने लोग हैं जिन्होंने बिजनेस में कैपिटल लगाया? प्लीज टेक योर हैंड्स अप. ओके, वेरी गुड. सो आपने आपके बिजनेस में, आपने जब आपका बिजनेस स्टार्ट किया, तब आपने आपके बिजनेस में लेट्स से आपने 100 लाख का, 100 lakhs का आपने कैपिटल लगाया. यू स्टार्टेड योर बिजनेस विद 100 lakh. वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ बजटिंग. बिल्कुल भी दी बाय होल पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव होम विद ऑल ऑफ यू कि फाइनेंस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. इस्तेमाल करना शुरू करिए. और इतना सिंपल नहीं होता तो धीरूभाई अंबानी ना होते. सो आपने बिजनेस स्टार्ट किया विद 100 lakhs of rupees. अब आपका बिजनेस चला, ठीक है, पिछले 5-6 साल तक, तो आपने प्रॉफिट कमाया. और आपने कितना प्रॉफिट कमाया? और जो प्रॉफिट आपने कमाया, समझो आपने 500 लाख का प्रॉफिट, 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया. और 5 करोड़ के 500 करोड़ के 5 करोड़ के प्रॉफिट में से आपने 1 करोड़ का प्रॉफिट निकाल लिया. तो आपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट छोड़ दिया? 400. सो दिस इज योर रिटेन्ड प्रॉफिट, राइट? दिस इज नॉन एज योर रिटेन्ड प्रॉफिट. अब आपकी बिजनेस में कैपिटल कितनी है? 500 lakhs. So this is your capital in your business. How do you do the budgeting? The simple method I am sharing it with you. How do you do the budgeting? How much is your capital in the business? 500 crore. Now, how much return you would like to earn from this business? Everyone. कितना परसेंटेज आप प्रॉफिट? ज्यादा से ज्यादा ऑफ कोर्स, दैट इज डेफिनेटली. बट चूंकि आप बजटिंग कर रहे हैं, तो कम से कम कितना चाहेंगे आप? 20%, 25%. ओके, सो लेट्स से 25%. हाउ मच इज 25% ऑफ दिस? 125. So 125 is your target of net profit. Meaning what? Meaning आपके इस बिजनेस में, प्लीज पे अटेंशन, आपके बिजनेस में आपका
100 लाख का कैपिटल लगा हुआ है, प्लीज रिमेंबर आपकी कैपिटल 100 लाख की नहीं है, यस और नो? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आपकी जो कैपिटल है वो शुरू में आपने 100 लाख लगाई थी, बराबर है, लेकिन बाद में जो प्रॉफिट बनाया और जो आपने वापस लगा दिया वो भी पैसा आपका ही है. That money that you have put it back into the business is your money. So your total capital in the business is 500 lakhs. If your aim, अगर आपको लगता है considering the economy, considering the industry, considering the efforts that you put into that business by yourself, अगर आपको लगता है कि मुझे 25% प्रॉफिट कमाना चाहिए, तो आपका टारगेट प्रॉफिट कितना हो गया? 125 lakhs. Now what do you start? अब हमने देखा था ना ये पहले कि किस तरह से सेल्स माइनस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस दी मटेरियल कॉस्ट, वो सब देखा हमने. तो आपको क्या करना है, आप नीचे लिख के लीजिए बॉटम में ईएटी कितना? 125. अब आप ऊपर के सारे फिगर्स को लिखते जाइए एंड दैट बिकम्स योर बजट. एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ यू हैव टू, वो जो डॉक्यूमेंट बनेगा 1 पेज का, उस डॉक्यूमेंट को आप अपनी जेब में रख के घूमिए. क्या करिए? जेब में रख के घूमिए. क्यों? क्योंकि ये आपके पूरे साल का रोड मैप है, ये आपका पूरे कंट्रोल टूल है. यानी कि ये नंबर से आप अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन की टारगेट सेटिंग करेंगे, पूरे बिजनेस का कंट्रोल करेंगे. ये नंबर से आपको मालूम पड़ेगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरी स्पीड सही है कि मेरी स्पीड स्लो है. राइट? So this is all, friends, that I had to share with you. In case if you have any question, I would be very happy to take them. Thank you so much. Thank you.